What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 13th of May, and yet again, we witnessed a massively volatile V-shaped kind of a market move today. Nifty opened pretty much flat, but within the first 1 minute, Nifty touched 23,500, and within the next few minutes, it broke the yesterday's low and it tanked another 250 points, made a low of 23,250, shot up by another 400 points, made a high of 23,600, and again, by the end of the trading day, it fell another 200 points. So it was pure chaos all around, and in terms of Sensex fell almost 1,000 points and then recovered 1,000 points and it again fell 500 points by the end of the trading day. So Sensex straddle जो 850 के आसपास open हुआ था, definitely it was not enough to handle the moves, and the straddle went into some sort of a repricing mode where straddle spiked from 850 to 925, and from 925 we saw a linear kind of a crush in the straddles. But definitely जो 200 point का जो crush मिला है तो आपके हाथ में बिल्कुल आया नहीं रहेगा, because the markets have been constantly giving delta moves and you'd be forced to delta hedge your positions. And surprisingly, in spite of the fact that the markets have recovered from the lows of 23,200, India VIX again closed in green. Of course, इतना ज़्यादा spike नहीं हुआ है, एक marginal spike देखने को मिला है, and the long-term option contracts have been slowly expanding. And today, Trump has visited China to have long talks about Iran, and the entire world is focusing on these talks and the outcome of these talks. So expect some amount of news-based moves tomorrow in the markets. And funny thing is, just a couple of days ago, our Prime Minister came out and urged the public not to buy gold and silver. And today, gold and silver kind of blasted on the upside. So gold was up almost 6% and silver was up almost 7%. And looks like people are buying gold and silver as a hedge against global uncertainty. So in spite of all this chaos, the straddle has closed somewhere around 700, and most probably on the expiry day tomorrow, it's going to open sub 500. And yet again, we're going to be witnessing another volatile expiry relative to the premiums. So it's going to be another roller coaster day tomorrow loading, and let's plan for tomorrow's trades. Let's get to the terminal. So, all right. डेली चार्ट पे मार्केट्स ने रेंज शिफ्ट जो कर चुका है, एंड लॉजिकली स्पीकिंग आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू टेस्ट 23,000 लेवल्स बिफोर टेकिंग फर्दर डायरेक्शन. जनरली यहाँ पे एक गैप आया है एंड गैप फिल करने को मार्केट्स आ चुका है, तो जनरली गैप फिल करके ही मार्केट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेगा. एंड इफ़ यू नोटिस यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाया है एंड उसके बाद एक सेलिंग आई है. एंड वन थिंग दैट यू कैन नोटिस इज द सेकंड टॉप जो बना है वो फर्स्ट टॉप से कहीं ना कहीं थोड़ा लो है. इसका मतलब ये है कि द पीपल हैव डिडंट वेट इवन फॉर द मार्केट्स टू कम टू द प्रीवियस लेवल, एंड उससे पहले ही थोड़ा इनिशिएटिव सेलर्स आ गए मार्केट्स में एंड दे आर सेलिंग द मार्केट्स. एंड एट द सेम टाइम देयर इज बीन अ सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस बिटवीन द इंडियन मार्केट्स एंड द यूएस मार्केट्स, एंड बिकॉज इंडियन मार्केट्स इज ऑन द receiving end of the ongoing conflict. And again 23,250 से एक बाइंग तो आया, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन फिर से वापस मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिला है. एंड जनरली अगले दिन जो ओपन होता है मार्केट, वो जनरली इस पे डिपेंड करता है कि पोस्ट नून किस डायरेक्शन पे मार्केट मूव हुआ है. तो पोस्ट 2 o'clock वी हैव सीन ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऑफ सेलिंग, एंड दैट मेक्स नॉट सच अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द बुल्स. एंड ऑल्सो पोजिशनल न्यूज़ के बारे में बात करना इतना ideal scenario नहीं है, because most of the positional moves and most of the positional price action is based on the news flow, and all it takes is one news to actually market come back with a good gap up and reclaim whatever the range shift that it has done. So low time frame पे बात करें तो again a volatile kind of a trading day, and आप देख सकते हैं कि like multiple breakouts दोनों तरफ fail हो रहा है, because यहाँ पे आप देख सकते हैं कि like first 15 minutes में यहाँ पे डे लो ब्रीच हुआ एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, बट वो ब्रेकडाउन वापस फेल हो गया एंड मार्केट्स रेंज के अंदर आ गया. एंड देन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया था, दैट टू विथ सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स. ऐसे लग रहा था कि द नेक्स्ट हॉल्ट फॉर द मार्केट वुड बी 23,750 और 23,800 लेवल्स, बट वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स हो गया एंड वापस रेंज के अंदर आ गया है. सो मल्टीपल टाइम्स जो है टेक्स्ट बुक पैटर्न्स जो है, टेक्स्ट बुक का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का पैटर्न्स जो है वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज आई थिंक नाउ दैट पीपल आर डिप्लॉइंग मोर ऑफ AI बेस्ड स्ट्रैटेजीज एंड AI इज ऑल्सो अ पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल. तो जनरली क्या होता था कि पहले सिर्फ आपको पैटर्न बेस्ड ट्रेड करने के लिए आपको बैठ के ट्रेड करना पड़ता था. नाउ दैट पीपल कैन डिप्लॉय द एल्गोस, एंड जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिप्लॉइंग टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ अ पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, देन डेफिनेटली दोज पैटर्न्स विल स्टार्ट टू फेल. ठीक है, तो टू टॉक अबाउट टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी,
तो सेंसेक्स का जो स्ट्रैडल था 920 का हाई बनाया था यहाँ पे, एंड उसके बाद एक डिसेंट लीनियर क्रश देखने को मिला है, बट ऑफ कोर्स दैट क्रश इज़ नॉट आपके हाथ में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कंसिस्टेंटली मार्केट 400 450 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स का जो स्विंग्स कंटिन्यूसली दे ही रहा था। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे लाइक स्ट्रैडल कहीं ना कहीं 700 रुपीज़ के आसपास क्लोज दिया है, विच मीन्स दैट अगेन एक्सपेक्ट अनदर 150 to 200 पॉइंट्स ऑफ ओवरनाइट क्रश एंड 500 रुपीज़ के आसपास कल स्ट्रैडल खुलने वाला है, विच अगेन मेक्स इट अ वेरी ट्रिकी एक्सपायरी डे फॉर द ट्रेडर्स, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आज का जो रेंज है दैट इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स। जो हाई बना है 75-200 का हाई बना है, एंड जो लो बना है दैट इज 74-100, ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट्स का एक रेंज बना है। तो एक्सपायरी ट्रेडर्स के लिए जो अच्छा वाला जो रेंज बनेगा वो ये है, 9:30 के पहले मार्केट्स को ये डे को स्प्लिट करना पड़ेगा। ये डे को स्प्लिट करके मार्केट इधर हैज़ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन द अपर हेमिस्फीयर और द लोअर हेमिस्फीयर। अगर मार्केट लोअर हेमिस्फीयर पे ट्रेड करना शुरू करेगा देन जो लॉजिकल रेंज बनता है ये रेंज बनता है, एंड अपर हेमिस्फीयर पे ट्रेड करना शुरू करेगा तो लॉजिकल रेंज बनता है ये रेंज बनता है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द फेयर प्राइस, राइट। जहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट उसी के आसपास क्लोज हुआ है, एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे जो है लॉजिकल स्विंग्स भी यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, तो लाइक आई वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली पिक अ रेंज। जब मार्केट इसके बीच हॉवर कर रहा है तो लाइक आई वेट फॉर द मार्केट्स टू पिक अ रेंज। जब एक डायरेक्शन पे अगर मार्केट जाता है तो देन ईदर आई विल इनिशिएट अ मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड, ईदर फ्रॉम द टुडे डेज हाई और फ्रॉम द डेज लो, दोनों तरफ से हम लोग मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट। बट अगर मार्केट्स एक बड़ा गैप डाउन ओपन कर देता है, लाइक व्हेन आई से बड़ा गैप डाउन ईदर बिलो द डेज लो और बिलो द डेज क्लोज, यहाँ पे भी अगर ओपन करता है तो देन आई विल बी वेटिंग फॉर दिस लो टू बी टेकन आउट। यहाँ पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ बाइंग पावर, तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक सेलिंग कंटिन्यू हुआ है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है दैट इज 74,300 या 74,300 के नीचे खुलता है एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे डिली डैली करके ब्रेक डाउन दे देता है, देन आई वुड लाइक टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, तो कब तक जाऊँगा, जब तक निफ्टी में 23,100 नहीं आता। तो बेसिकली निफ्टी में 150 पॉइंट्स का एक टारगेट मिल सकता है डेज लोज से एंड 23,100 के बीच में, एंड सेंसेक्स में मल्टीप्लाइड बाई 3 समवेयर अराउंड 350 to 400 पॉइंट्स का एक टारगेट लेके हम लोग चल सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स बिलो दिस गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन से इसके ये लो से नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो देन वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड फर्स्ट 15 मिनट्स का जो इनिशियल बैलेंस बनता है, अगर ये इनिशियल बैलेंस जो है 400 पॉइंट से ज़्यादा है तो देन ट्रेड द रेंज ऑफ दैट फर्स्ट 15 मिनट्स, एंड अगर 400 पॉइंट से कम है दैट इज 250-200 पॉइंट्स के आसपास है, देन वेट फॉर द रेंज टू एक्चुअली गिव अ सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट और अ ब्रेक डाउन। तो अगर छोटा रेंज है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को तोड़ेगा, एंड अगर बड़ा रेंज है तो मार्केट यहीं पे उस रेंज के बीच में मीन रिवर्शन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगा। एंड इन एनी केस एक्सपेक्ट एटलीस्ट 600 to 700 पॉइंट ऑफ मूव इन द मार्केट्स, बिकॉज 500 रुपीज़ के आसपास अगर स्ट्रैडल खुलता है तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता कि मार्केट 500 पॉइंट के अंदर रहे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोज इज कमिंग फ्रॉम सेल साइड एल्गोस, एंड डेफिनेटली उन सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट्स कहीं ना कहीं मूव करने वाला ज़रूर है। ठीक है, व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स विद अ गैप अप, लेट्स से 75,000 के आसपास अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देन वेट फॉर अ क्लियर कट ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट को डायरेक्टली ट्रेड मत करो, बट रैदर रीटेस्ट को ट्रेड करो, बिकॉज क्या हो जाता है कि लाइक मार्केट्स में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है एंड ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल होने वाला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट जैसे था, बट ब्रेकआउट फेल हो गया था। तो सिमिलरली टुमारो ऑल्सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रेकआउट्स माइट फेल, सो दैट इज वाई आपका रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस ब्रेकआउट को होने के लिए वेट करना है, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट पे हम लोग एंट्री करेंगे, सो दैट अपना जो रिस्क है वो रिस्क छोटा रिस्क बन जाएगा एंड उसके अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा अच्छा बैठ सकता है। ठीक है, नाउ टुमारो वुड बी अ गुड डे टू एक्चुअली एग्जीक्यूट रेशियोज लाइक OTM डेबिट रेशियोज हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड अगर मार्केट इस हाई को तोड़ के अगर निकलना शुरू कर देता है तो देन द नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 75,700 75,800 लेवल्स, बट अगेन unless we get some positive news, this happening is a pretty low probability kind of a scenario. मेरे लिए अच्छा ये रहेगा कि मार्केट्स फ्लैट खुल जाए फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स में। मार्केट्स ने इस डे का जो रेंज जो आज बनाया उसको 2
हेमिस्फीयर में बांट दे एंड किसी एक रेंज को पकड़ जाए तो देन मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसके सेंटर पे मैं स्ट्रैडल बना लूंगा या कुछ ट्रायंगल बना लूंगा एंड देन आई ट्राई टू मैनेज इन अ डेल्टा न्यूट्रल फैशन विथ स्टैगर्ड एंट्रीज एंड डायनामिक पोजीशन साइजिंग. ठीक है, आई होप यू गाइज डिडंट गेट स्टक इन दीज काइंड्स ऑफ मूव्स. ऑफ कोर्स हमने ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड बनाए थे, तो इतना प्रॉफिट होने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो स्टॉप लॉस है, इधर आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे या आपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल किए होंगे. बट डेफिनेटली टुडे वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ अ डे बिकॉज मल्टीपल टाइम्स द ब्रेकआउट्स काइंड ऑफ फेल्ड. ठीक है, सो आई विल सी यू आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी एंड आई विश यू गाइस अ गुड प्रॉफिटेबल एक्सपायरी टुमारो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.